डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MR मैथ्स अकेडमी। इस चैनल में हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक ये पेपर फर्स्ट का सबसे इजी, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग चैप्टर है। इस लेक्चर में हम स्टेटमेंट और ट्रुथ वैल्यू को स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ लॉजिक पजल्स which is given by mathematician and logician Raymond Smullyan. He wrote 5 books on logic puzzles. Two of his interesting puzzles are: an Iceland has two kinds of inhabitants, knights who always tell the truth and knaves who always lie. You go to the Iceland and meet A and B. A says B is a knight and B says the two of us are of opposite types. So what are the types of A and B? Solution: both A and B are knaves. Second puzzle is: if A says the two of us are both knights and B says A is a knave. So what are the types of A and B? Solution: A is knave and B is a knight. Dear students, इन puzzles को जब हम लॉजिक को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं तो इजीली हमको इसका आंसर जो है ना मिल जाता है। सो लेट अस सी व्हाट इज लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक, this word is derived from Greek word logos, which means reason. So we can define logic as science of reasoning. The first approach to logic was given by George Boolean. So it is also called as Boolean logic. स्टूडेंट्स, जब हम लॉजिक को स्टडी करते हैं तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है, वाई वी स्टडी लॉजिक। तो लॉजिक को स्टडी करने के बहुत सारे एडवांटेजेस, बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस हैं, उसमें से कुछ हम देखते हैं। सो नंबर 1, लॉजिक हेल्प्स द स्टूडेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट्स बिकॉज एवरीबडी थिंक but everybody can't distinguish between valid and invalid thinking or arguments. Second, logic shows how one should think if one has to think clearly. Third, logic is a process of analyzing assumption and drawing the conclusion true or false. Next one, logic develops the skill of systematic and exact reasoning and enhances the capacity of understanding valid and invalid arguments. Students, logic has numerous applications in many branches of science, particularly in computer science. It is used in designing of computer circuit, computer programming, artificial intelligence, and switching circuits. Statement and its truth value. डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट ये लॉजिक का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन है इसमें दो कंडीशंस हैं। अ सेंटेंस विच इज डिक्लेरेटिव एंड सेकेंड कंडीशन है इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, then that sentence is called statement. Any sentence which satisfies two conditions. First condition, it must be declarative sentence, and second condition,
it is either true or false but not both simultaneously, then that sentence is called statement in logic. So first condition हमने देखा है is declarative sentence. What do you mean by declarative sentence? Declarative sentence means which declares something. Declarative sentence को ही हम कहते हैं assertive sentence, simple sentence, which is fully explained or which is universal fact. इन सब को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ये एक्सप्लेनेशन में आते हैं. जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस आइदर ट्रू और फॉल्स रहेगा, देन दैट सेंटेंस, दैट गिवन सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट इन लॉजिक. सेकेंड वन है ट्रूथ वैल्यू. द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी, द ट्रूथ or falsity of a statement is called its truth value. Every statement is either true or false. If a statement is true, its truth value is true and denoted by capital T. If a statement is false, its truth value is false and denoted by capital F. तो अभी हमने दो डेफिनेशन देखे, स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू. स्टेटमेंट के लिए दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन कि गिवन सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए. सेकंड कंडीशन इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, देन दैट गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट. और उसकी सेकंड कंडीशन जो है वही उसकी ट्रूथ वैल्यू को डिफाइन करेगी. तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस है मुंबई इज ए कैपिटल ऑफ कनाडा. इसको चेक करना है कि वेदर इट इज स्टेटमेंट और नॉट. तभी हमने डेफिनेशन देखा है कि सेंटेंस विच सेटिस्फाइज टू कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन, गिवन सेंटेंस मस्ट बी डिक्लेरेटिव, एंड सेकेंड कंडीशन, इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, देन गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट. एंड सेंटेंस है मुंबई इज ए कैपिटल ऑफ कनाडा. इसको रीड करने के बाद इसके मीनिंग हमको समझ में आते हैं, फुल्ली एक्सप्लेन है. और ये डिक्लेयर कर रहा है कि मुंबई इज ए कैपिटल ऑफ कनाडा, देयरफॉर इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. सेकेंड है इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. इस सेंटेंस को रीड करने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि इट इज फॉल्स सेंटेंस, देयरफॉर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, देयरफॉर गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट. और सेकेंड कंडीशन से हमको समझ में आ रहा है कि दिस सेंटेंस इज ए फॉल्स सेंटेंस, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F. सेकेंड, 1 + 0 = 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फुल्ली एक्सप्लेन है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. सेकेंड कंडीशन 1 + 0 = 1 ट्रू है, देयरफॉर सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई. सो वी से दिस सेंटेंस इज स्टेटमेंट. और सेकेंड कंडीशन से इसकी ट्रूथ वैल्यू डिफाइन हो रही है. 1 + 0 = 1 ट्रू है, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T. 0 + 0 = 2 फुल्ली एक्सप्लेन है, दैट मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. 1 + 0 = 2 फॉल्स, देयरफॉर सेकेंड कंडीशन जो है आल्सो सेटिस्फाइड है, देयरफॉर given sentence is a statement with truth value false. Delhi is a capital of India, fully explained है, that means declarative sentence है, first condition satisfied है.
सेकेंड कंडीशन, इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू सेंटेंस है, देयरफॉर सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। So given sentence is a statement with truth value T. What a horrible sight it was. इस सेंटेंस को रीड करने के बाद इसका टाइप हमको अंडरस्टैंड करना है। इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, दैट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखते हैं कि सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो इन 4 सेंटेंस में से गिवन जो सेंटेंस है इज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, देयरफॉर इट इज नॉट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। और इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट टाइम इज इट, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, देयरफॉर ये सेंटेंस का एक पर्टिकुलर टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दैट मीन्स नॉट ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, देयरफॉर नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू नॉट डिस्टर्ब, इसका टाइप डू नॉट डिस्टर्ब, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, therefore it is an imperative sentence. Imperative sentence है, therefore not a declarative sentence. First condition not satisfied, therefore not a statement because it is imperative sentence. X plus 2 equals 5. इस सेंटेंस को जब हम रीड करते हैं, x plus 2 equal to 5, यहाँ पर जो क्वांटिटी x है इसके ऊपर इसकी ट्रुथ और फॉल्सिटी जो है ना डिपेंड है। अगर हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं देन इट इज़ ट्रू सेंटेंस, और अदर देन 3 पुट करते हैं देन इट इज़ फॉल्स सेंटेंस। यानी ट्रूथ और फॉल्सिटी एक क्वांटिटी पे डिपेंड है, क्वांटिटी x है, x इस क्वांटिटी पर इसकी ट्रूथ और फॉल्सिटी डिपेंड है। तो यहाँ पर हमको 2 आंसर्स मिल रहे हैं, ट्रू भी मिल रहा है, फॉल्स भी मिल रहा है। कंडीशन चेंज हो रही है, सो आंसर भी चेंज हो रहा है, देयरफॉर इट इज पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल है। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नॉट ए स्टेटमेंट, दे आर कॉल्ड ओपन सेंटेंसेस। सो ओपन सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। तभी अपने एग्जाम्पल्स देखें, इन एग्जाम्पल्स में से हमने ये समझा कि सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो आउट ऑफ दीज 4 sentences only declarative sentence with condition either true or false but not both simultaneously is a statement in logic. So only declarative sentence with condition either true or false is a statement and all other sentences are not a statement. और लास्ट से हमको मिला open sentence is a not a statement. Open means truth or falsity of a sentence is depend on some quantity. रिमार्क्स, अभी हमने जो स्टडी किया है उसको हम समराइज करते हैं point wise. So number 1, only simple sentences are statements in logic. Simple sentences means declarative sentence, assertive sentences. Sentence must be declarative. Declarative means fully explained universal fact.
all statements are sentences, but all sentences may not be statements. Interrogative, exclamatory, imperative sentences are not taken as statements. If the truth and falsity of a statement is depend on some quantities, then that is called open sentence and it is not a statement. Or we can say a sentence contain one or more variables is called an open sentence. A sentence which is both true and false is not a statement. It is called paradox. A sentence which is neither true nor false is not a statement. It is called law of excluded middle. लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हमने देखे ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज 1.1. State which of the following sentences are statements. Justify your answer. In case of a statement, write down the truth value. And first one is 5 plus 4 equals 13. हमको डिफाइन करना है कि whether given statement is a given sentence is statement or not, और उसको जस्टिफाई करना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है. और इन केस ऑफ स्टेटमेंट उसके ट्रुथ वैल्यू को हमको डिफाइन करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस है 5 plus 4 equal to 13. फुल्ली एक्सप्लेन है, देयरफॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. 5 plus 4 equal to 13 is false. Therefore second condition is also satisfied. Therefore given sentence is a statement and its truth value is false. So we write it is a statement which is false, hence its truth value is capital F. Second, may God bless you. This sentence is not a declarative sentence because exclamation symbol is involved in a sentence. Therefore this sentence is imperative sentence, not a declarative sentence. First condition not satisfied, therefore it is not a statement. It is an exclamatory sentence, hence it is not a statement. Third one, 0 is a complex number. 0 is a complex number. Fully explain है, therefore declarative sentence है. First condition is satisfied. It is either true or false. Second condition है. 0 is a complex number. हमने 11 में इसको स्टडी किया है कि 0 can be defined in complex number. We can write 0 equal to 0 plus 0i. Therefore it is true. Second condition is satisfied. Therefore given sentence is a statement and which is true, hence its truth value is T. Next, please get me breakfast. सेंटेंस को रीड करने के बाद समझ में आ रहा है कि ये रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स इट इज imperative sentence. An imperative sentence is not a statement. Therefore solution is it is imperative sentence, hence it is not a statement. Fifth one, why are you upset? Question mark है, therefore interrogative sentence है. That is not a declarative sentence. First condition is not satisfied. Therefore solution is it is an interrogative sentence, hence it is not a statement. Sixth one, congruent triangles are similar. सेंटेंस रीड करने के बाद
फुल्ली एक्सप्लेन है, समझ में आ रहा है। Therefore, it is a declarative sentence. First condition is satisfied. Congruent triangles are similar. इस पर से हमको उसकी ट्रुथ और फॉल्सिटी वो भी समझ में आ रही है। Therefore, second condition is satisfied. Both conditions satisfied हो गए। Therefore, it is a statement. So, solution is it is a statement which is true. Hence, its truth value is T. 7. x स्क्वायर इक्वल टू x। यहाँ पर x की वैल्यू जो है अनडिफाइन है, यानी ट्रूथ और फॉल्सिटी जो है इस क्वांटिटी x पर डिपेंड है। Therefore, it is a open sentence and which is not a statement. Solution is it is an open sentence, hence it is not a statement. Next one, x square minus 6x minus 7 equal to 0 when x equal to 7. X square minus 6x minus 7 equal to 0 is a quadratic equation है, और साथ में हमको इसकी एक रूट की वैल्यू गिवन है x is equal to 7। मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फुल्ली एक्सप्लेन है कि गिवन सेंटेंसेस है जो मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। सेकेंड, आइदर ट्रू और फॉल्स, इसको चेक करना है। सो हम x इज इक्वल टू 7 को इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू 7 जब हम पुट करते हैं तो x स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 6 इंटू 7 माइनस 42 मिल रहा है, माइनस 7। सो 49 माइनस 49 इक्वल टू इट्स राइट साइड 0। देयरफॉर ट्रू मिल रहा है, यानी x इज इक्वल टू 7 इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज t रहेगी। Solution, it is a statement which is true, hence its truth value is T. Next one, the quadratic equation can't have more than 2 roots. सेंटेंस को रीड करने के बाद हमको उसके मीनिंग समझ में आ रहे हैं, दैट इज ये फुल्ली एक्सप्लेन है, therefore it is a declarative sentence. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सेकेंड कंडीशन आइदर ट्रू और फॉल्स, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कांट हैव मोर देन 2 रूट्स। यहाँ पर हमको रूट्स रियल फॉर्म में चाहिए, एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल फॉर्म में ओनली 2 रूट्स होते हैं, यानी कांट हैव मोर देन 2 रूट्स। दैट मीन्स इसकी ट्रूथ वैल्यू t होगी। सो सोल्यूशन इज इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज ए गुड पर्सन। इस सेंटेंस को रीड करने के बाद यहाँ पर जो वर्ड जो ही है, ही जी इज नॉट fully explained. अगर ही इस वर्ड ही पर जो है इसकी ट्रूथ और फॉल्सिटी जो है ना डिपेंड है, ही यहाँ पर फुल्ली एक्सप्लेन नहीं है। दैट मीन्स अगर ही डिफाइन रहेगा तब हम कह सकते हैं कि गिव ही पर्सन इज ए गुड और नॉट। दैट मीन्स ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ this sentence is depend on quantity or word he. Therefore, it is an open sentence. Hence, it is not a statement. Next sentence is 2 is only even prime number. Fully explain है. That means declarative sentence है. First condition satisfied. 2 is only इवन प्राइम नंबर, और हम जानते हैं कि 2 इज ओनली
even prime number. All other prime numbers are odd. Therefore, it is a true statement, true sentence. Second condition is also satisfied. Therefore, given sentence is a statement. Hence, its truth value is T. All real numbers are whole numbers. All real numbers are whole numbers. Given sentence is fully explain है, वो declare कर रहा है, therefore it is a declarative sentence. First condition is satisfied. Now, all real numbers are whole numbers. Whole numbers starting from zeros and 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो. और रियल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, and it is a combination of rational and irrational numbers. Therefore, whole number is a subset of real number. Therefore, real numbers, all whole real numbers are not a whole numbers. Therefore, this sentence is false. Second condition is also satisfied. Therefore, it is a statement with truth value F. So, solution, it is a statement which is false. Hence, its truth value is F. The sum of the cube root of unity is 0. फुल्ली एक्सप्लेन है, डिक्लेयर कर रहा है ये सेंटेंस कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0. देयरफॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. 13(1) is the sum of cube root of unity is 0. Can you answer this? Yes, it is a statement which is true, hence its truth value is T. गिवन जो सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0. और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी किया है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, दैट इज 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ट्रू है. नाउ नेक्स्ट वन, कैन यू स्पीक इन मराठी? इट इज नॉट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट इज an interrogative sentence, therefore it is not a statement. It rains heavily. इस सेंटेंस को रीड करने के बाद हमको ये फुल्ली एक्सप्लेन सेंटेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड इट है, इट रेन्स हेविली, इस पर इसकी ट्रूथ और फॉल्सिटी जो है डिपेंड है. देयरफॉर it is a open sentence. Hence it is not a statement. So dear students, हमने इस लेक्चर के अंदर स्टेटमेंट, उसकी ट्रुथ वैल्यूज को फाइंड करने का मेथड देखा है. स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए हम दो कंडीशंस को यूज़ करते हैं. फर्स्ट कंडीशन है कि गिवन सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए. सेकंड कंडीशन, इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स होना चाहिए, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. और इसके सेकंड कंडीशन से ही हमको उसकी ट्रुथ वैल्यू जो है ना डिफाइन होती है. स्टूडेंट्स, समटाइम्स हमको कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको रीड करने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक बेहतरीन सी टेक्निक देता हूँ मैं आपको. जब आप कंफ्यूज हो जाए तब उस वक्त जो है गिवन सेंटेंस को आप क्वेश्चन कीजिए. क्वेश्चन क्या करना है, इज इट ट्रू और फॉल्स. अगर उसका आंसर एग्जिस्ट हो रहा है ट्रू में, देन स्टेटमेंट. अगर फॉल्स में आ रहा है तब भी वो स्टेटमेंट रहेगा. जैसे हम इस सेंटेंस को लेते हैं, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर. ये हमको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि स्टेटमेंट है या नहीं, तो उसको क्वेश्चन करना चाहिए. इस सेंटेंस 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर को हम क्वेश्चन करेंगे कि इज इट ट्रू और फॉल्स. तो आंसर क्या होगा, ट्रू. देन इट इज़ ए स्टेटमेंट
एंड आंसर ट्रू आ रहा है, देयरफॉर इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। सेकेंड, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो इसको हम क्वेश्चन करेंगे, इज इट ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स, देयरफॉर इट इज स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। तो इस तरह जो है हम जब कन्फ्यूजन रहेगा उसको अवॉइड करने के लिए उसको क्वेश्चन करेंगे, इट इज़ ट्रू और फॉल्स, आंसर एग्जिस्ट होगा तो स्टेटमेंट और इसकी ट्रूथ वैल्यू दोनों भी डिफाइन हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।